ठीक है. So just overview once again. Pulley, it is a simple machine. Simple machine. Pulley can be arranged in two ways, or pulley can have two arrangements. पहला, pulley is fixed, it's non-moving. Pulley is non-moving. Pulley is non-moving. ठीक है. दूसरा अरेंजमेंट जो रहता है उसमें pulley itself is moving along with the weight or the load. Pulley is moving. ठीक है. यहाँ पर pulley fixed है, but the load will be moving. Load will move. And so the arrangements will move. And दूसरे arrangement में pulley is moving along with movement of load. I mean pulley is moving and also load is moving. And also load is moving. Load is moving. Is that okay? अब arrangements कैसे होते हैं दोनों? I'll show it one by one. For example, yes, well, right. पहले वाले का एग्जाम्पल है फर्स्ट वन. When fixed pulley, we have fixed pulley. Well is a typical example. You have यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट बना रहेगा. pulley around it. pulley के ऊपर स्प्रिंग रहेगा. Where you will have a pulley around it. And यहाँ पे you will have a rope going down. जिसमें बकेट बना हुआ रहेगा. And this will hold water and will come out, and there will be some man who will be pulling the rope out, and then इसको नीचे छोड़ा होगा तो इसको नीचे इस डायरेक्शन में ये नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा. ठीक है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड पुली. इज दैट ओके? या फिर फॉर दैट मैटर वी कैन हैव maybe should I say a pulley is there. Sir, in construction of building. Right. You have a green light. The mast being pulled over by a pulley. To make The mast. To make the load lift. Right. Load lift. Right. So basically, if we are going to directly lift it, and if we are going to lift it by this method, okay, it is easier to do things towards yourself, down yourself, right? But directly pulling anything up is a difficult job. तो दोनों में एफर्ट लगभग बराबर ही लगेगा. यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज इज गोइंग टू बी निल. ठीक है. देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी मैकेनिकल एडवांटेज एज सच, but it is an easy way. This is an easier way to do the same amount of or apply same amount of force than doing this way, doing it this way. ठीक है. डायरेक्टली पुल करना किसी चीज को ऊपर की तरफ खुद को झुक करके, दैट्स ऑलवेज बोलो. Sir, on Independence Day we lift flag with pulley. Yes, we lift
flag with pulley, no doubt about that. So these are Yes, sir, it examples. is fixed. That is also a fixed pulley. Very true. We lift the flag with the help of fixed pulley. Okay. And then we have systems where the pulley is not fixed. It's movable. Okay. I'll give example of that also. Movable pulley. Movable pulley arrangement. We have a wall over here, maybe ceiling. Okay. Ceiling में ऊपर से एक स्ट्रिंग बांध दिया मैंने और इधर भी एक स्ट्रिंग रख दिया मैंने एंड यहाँ पे एक पुली लगा दिया सिंपल ये रोड इसमें ऐसे जाए ठीक है एंड यहाँ पर पुली के साथ एक गेट मैंने बांध दिया some weight W is equal to m into mass into gravity. अब मैं तो इस एंड ऑफ रोप को ऊपर की तरफ पुल करना ठीक है और इस प्रोसेस में मैं इस पर F फोर्स लगा रहा हूँ ठीक है ये वायर या रोप जो है दैट इज सेम रोप तो ये सेम फोर्स इस तरफ भी ट्रांसफर होता है ठीक है एंड पूरे रोप में द फोर्स और द देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेंशन ठीक है you take a rope tie it to something and then try to pull it और आप जिस फोर्स से इसको पुल करोगे They're like elevators. हाँ एलिवेटर्स बोल सकते हैं या एलिवेटर इज Sir, and काइंड what ऑफ is this? कहाँ पे अरे ये सीलिंग को दिखाने के लिए दिस हाँ इज मतलब सिंपली नहीं हाँ ये वाला जो है ना इसका मतलब होता है ऊपर में कुछ नहीं है दिस पोर्शन इज नॉट मूवेबल ठीक है दिस इज अ फिक्स्ड पोर्शन इज दैट ओके जनरली ग्राउंड ड्रॉ करते हैं हम लोग तो ऐसे ऐसे कर देते हैं नॉन मूवेबल को दिखाने के लिए ये वाला ट्रिक यूज करते हैं इज दैट ओके समझा अभी मैं ये समझा रहा था आप लोगों को टेंशन इन द रोप यहाँ पे तो ये रोप को बांध दिया और फिर मैंने इसको अपनी तरफ इस तरफ खींचना चालू किया विद फोर्स से ये वाला पोर्शन रोप का जो है उसको मैं खींच रहा हूँ अपनी तरफ इसके पीछे वाला जस्ट पोर्शन जो है जो यहाँ पर ब्लू मार्क कर रहा है ठीक है वो ये ब्लैक वाले पोर्शन के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है तो मैं ब्लैक वाले पोर्शन को पुल कर रहा हूँ और ब्लैक वाला पोर्शन जो है वो उसी फोर्स से ब्लू वाले को पुल करेगा बाहर की तरफ इसका रिस्पॉन्स क्या होगा ब्लू वाला जो है पार्ट वो ब्लैक वाले को पीछे की तरफ पुल करेगा अवे फ्रॉम मी इज दैट ओके मैं ब्लैक वाले को आगे की तरफ पुल करूंगा तो ब्लैक वाला ब्लू वाले को आगे की तरफ यानी लेफ्ट साइड में पुल करेगा ब्लैक वाला जो फोर्स मैं ब्लैक वाले पे बाहर की तरफ लेफ्ट की तरफ लगाऊंगा वही फोर्स ब्लैक वाला पोर्शन ब्लू वाले पोर्शन के ऊपर लेफ्ट साइड में लगाएगा
ठीक है. And from third law of motion we know that every action has equal and opposite reaction. इसकी वजह से ब्लू वाला पार्ट जो है वो ए को अपनी तरफ खींचेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ब्लैक वाला ब्लू वाले को किस डायरेक्शन में खींच रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट. ब्लू वाला ब्लैक वाले को किस डायरेक्शन में खींचेगा, टुवर्ड्स राइट. इज दैट ओके? ये बात समझ में आया? Yes, sir. ओके. नाउ ये पुश एंड पुल की वजह से मटेरियल ऑफ द रोप के अंदर देयर इज अ स्ट्रेचिंग और देयर इज अ फोर्स व्हिच विल बी कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस. ठीक है. दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन. ठीक है. और टेंशन का मतलब आइडिया ये होता है कि ये पूरा स्ट्रिंग जो है उसके अंदर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, हर जगह पे इक्वल अमाउंट में रहता है या सेम अमाउंट पूरे रोप में हर जगह पे रहेगा. किसी भी दो पॉइंट को कंसिडर करेंगे, मान लो ये पॉइंट को कंसिडर किया और ये पॉइंट को इसके बाजू वाले पॉइंट को कंसिडर किया, तो ये येलो वाले को टुवर्ड्स लेफ्ट खींचेगा टेंशन से, जो कि टेंशन है उसका टेंशन टी से, और येलो वाला ब्लू वाले को टुवर्ड्स राइट खींचेगा सेम टेंशन से, राइट. एंड टेंशन इज व्हाट? टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स. टेंशन से खींचेगा मतलब फोर्स लगा करके खींचेगा. एंड दैट अमाउंट, दिस अमाउंट ऑफ दिस फोर्स इज गोइंग टू बी सेम एवरीवेयर. कब तक सेम रहेगा? जब तक ये रोप जो है ना, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं मासलेस. और आप लोगों को लाइक 8, 9, 10 तक में you have to consider, always consider mass as massless thing. It will have negligible mass to zero mass. ठीक है. It is only that like 10th में आप आओगे तो थोड़े से continuous mass मतलब not massless but mass वाले और string के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे. ठीक है. But अभी के लिए we have to consider that the string is massless. और क्योंकि massless है तो हर जगह पे किसी भी पोर्शन पे देखेंगे, इन दोनों पर देखा, फिर मान लो ये जगह पे मुझे देखने की मूव करता है तो ये जगह पे भी येलो वाला ग्रीन वाले को लेफ्ट साइड में खींचेगा टेंशन से, जो भी टेंशन की है, और ग्रीन वाला येलो वाले को राइट साइड में खींचेगा. तो हर पोर्शन एक दूसरे को खींच रहा है. That leads to development of this tension, and this tension will be exactly equal to this force here. ठीक है. Yes, sir. अब अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पर एक टेंशन ऊपर की तरफ लगने लगेगा. ठीक है. Is that okay? और ये टेंशन बेसिकली इस दूरी को ऊपर की तरफ पुल करेगा और सेम अमाउंट का टेंशन दूसरे वाले एंड में भी, यानी ये भी वायर सेम ही है या रोप सेम ही है, तो यहाँ पर भी वही टेंशन काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. हमने E या F फोर्स से ऊपर की तरफ उसको खींचा रोप को, तो रोप के अंदर टेंशन F के बराबर इस आर्म में और F के बराबर ही सपोज दे रखा है F फोर्स, तो F के बराबर ही टेंशन यहाँ पर रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पर भी अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. अब रूल के हिसाब से the upward force and the downward force must be equal so that one can move. And black is blue. Blue is
So in order to keep this weight or this mass at equilibrium, that is non-moving condition, this upward force must be balanced with downward force. ठीक है? So यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन हो जाता है F plus F is equal to weight which is equal to mg. ठीक है? That implies 2F is equal to W. और वेट क्या है? ये हमारा लोड है और F क्या है? ये है मेरा एफर्ट. इज दैट ओके? मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा इस केस में? इट विल बी लोड बाय एफर्ट. What will be the value of mechanical advantage in this case? Anyone? Sir, what is the weight? Weight is given now. You need load by effort का ratio now. And load क्या है? Load is W. So we have to find load. Then you have to find the ratio of load by effort. Quickly. Are we done? अरे load is W, right? And effort is F. हम तो फोर्स F ही लगा रहे हैं ना सिर्फ. और W क्या है? 2F के बराबर है. तो 2F by F will be what? 2. So mechanical advantage हमारा क्या होगा? Movable pulley के केस में it is always going to be 2. ठीक है? अच्छा, अगर हम इसको मान लो एंगल्स वगैरह पे खींचते हैं ना, तब 2 नहीं रहेगा, तब 2 से कम रहेगा. ठीक है? बट अगर वर्टिकली अपवर्ड खींच रहे हैं ना, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2. इज दैट ओके? सिमिलरली पिछले वाले केस में अगर देखते हैं, ये वाले केस में, तो यहाँ पे अगर मैं F फोर्स लगाता हूँ नीचे की तरफ, तो F फोर्स नीचे की तरफ लगाऊंगा, तो F अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो सेम फोर्स इधर ट्रांसफर होएगा, और यहाँ पर भी ये फोर्स ऊपर की तरफ F अमाउंट लगेगा, which will balance the weight of this entity, which is equal to mg or W. So इस केस में क्या हो जाएगा? If this is an equilibrium that is not moving, then F will be equal to mg. ठीक है? लोड क्या है? Load is equal to mg and effort is also mg. Therefore mechanical advantage क्या हो जाएगा? Load by effort. Is that okay? Yes, sir. Load is equal to W, which is mg, and F is also equal to mg. That means mg by n, which is equal to 1. तो इस केस में, फिक्स्ड पुली के केस में, मैकेनिकल एडवांटेज इज
1 or less than 1. Less than 1 कब होगा? ठीक है, जब हम इसको किसी एंगल पे पुल करें। और बाकी सारे केसेस में क्या रहेगा? यहाँ पे क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी इन बिटवीन 1 and 2. बट जनरली मैकेनिकल एडवांटेज अभी आपके लिए मूवेबल पुली पे 2 है और नॉन मूवेबल के लिए क्या रहेगा? 1. So which is advantageous in terms of effort to be used as a machine. ये नोट कर लो आप लोग एक बार, नॉट दिस मॉडिफिकेशन बट नॉर्मल टर्म्स। फिक्स्ड पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहेगा? 1. मूवेबल पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहेगा? 2. इज दैट ओके?